Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Now, welcome back to computer class. Today, we will continue our chapter number 4. The name of the chapter is Page Formatting in Word. Today, we will cover these topics. First is paragraph spacing. Second is setting page margins. Third is setting tabs. Fourth is indenting text. Fifth is page orientation. And sixth is page backgrounds. Now first topic, paragraph spacing. Paragraph spacing refers to the amount of white space or vertical distance between the paragraphs. To set the spacing, follow. Now our first topic is paragraph spacing. Paragraph spacing refers to the amount of white space or vertical distance between the paragraphs. To set the spacing before and after a paragraph, we need to follow some different methods. Now, there are two methods to set the paragraph spacing. First is using line and paragraph spacing button, and second method is using paragraph dialog box. Now we will do these two methods practically. As we have two methods to set the paragraph spacing. First of all, we will do method number 1. Here I have typed two paragraphs. Now using method number 1, I will give the paragraph spacing. First of all, select the text. बेटा सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे. Then click on line spacing button. Now here in the last add space before paragraph, click on it. You will see some space is added before the paragraph. Now second option, add space after paragraph. You will see some space is added after the paragraph. Now we will use second method to set the paragraph spacing. First of all, select the text. All the paragraphs I will select first. Then click on line spacing option. There is an option line spacing options. Click on it. Paragraph dialog box appear. Now देखिए स्पेसिंग में बिफोर एंड आफ्टर दो ऑप्शंस गिवन हैं, इंक्रीज और डिक्रीज द पॉइंट्स फ्रॉम हेयर. यहाँ पर हम इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आपको करना है, यू कैन डू दैट. देन क्लिक ऑन ओके. यू कैन सी स्पेस इज एडेड आफ्टर द पैराग्राफ. नाउ सी दिस पिक्चर. यू हैव दिस टाइप ऑफ नोटबुक विद यू. आपके पास ऐसी आपने नोटबुक देखी है ऐसी. देखिए बेटा, हमारे नोटबुक के अंदर ऊपर स्पेस गिवन होता है. दिस इज़ टॉप मार्जिन. लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट मार्जिन, राइट साइड पर हम राइट मार्जिन छोड़ते हैं लिखते हुए, और नीचे बॉटम मार्जिन. ओके. सिमिलरली व्हेन वी वर्क ऑन कंप्यूटर वी हैव टू लेफ्ट मार्जिन ऑन आवर पेजेस. ओके. सो टुडे we will cover next topic, setting page margins. You must have noticed the white space around the four sides of a book. जैसा कि मैंने आपको अभी नोटबुक में दिखाया, four sides पर margin. So these are the four margins that we have. Margin is the amount of empty space between the edge
ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट। बेटा हम जो भी टेक्स्ट पेज पर लिखते हैं उसके साइड्स पर हम एम्प्टी स्पेस छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। अ पेज हैज़ टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। आपको मैंने अभी दिखाया है हमारे पेज पर टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन होता है। इन MS Word, the default settings for all the 4 margins is 1 inch each। हमारे MS Word में 1 इंच का मार्जिन चारों तरफ से दिया गया होता है। हमारा टॉप मार्जिन भी 1 इंच होता है, बॉटम भी, लेफ्ट भी एंड राइट भी। हम इस मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स to set this margin। first is using predefined margins options, जो कि पहले से डिफाइन की हुई हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। second is customize margins using page setup dialog box and third is using rulers। now we will do practically these 3 methods to set a page margin। we have 3 methods to set the page margins। first of all we will use method number 1। click on layout, page layout tab। here a tab margins is given। देखिए यहाँ पर बेटा बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्जिन्स आपको गिवन हैं, यू कैन चूज़ एनी वन। आई हैव चूज्ड नैरो। देखिए मार्जिन जो है वो कम हो गया है। नाउ वी विल डू सेकेंड मेथड टू सेट द पेज मार्जिन। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। here margin option is given, click on it, then click on custom margins। page setup dialog box will appear। now you can set margin from here, top margin, bottom margin, left margin and right margin you can set from here। then after setting it, click on OK। now we will do method third to set the page margin by using ruler। देखिए आपको रूलर पर ये ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द मार्जिन। ओके, ऐसे ही बॉटम मार्जिन है, दिस इज़ बॉटम मार्जिन। आपको लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह से ड्रैग करके हम यहाँ पर मार्जिन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। okay, similarly we can increase or decrease the top margin and bottom margin। now see this picture, you have this type of notebook with you। आपके पास ऐसी आपने नोटबुक देखी है ऐसी। देखिए बेटा हमारे नोटबुक के अंदर ऊपर स्पेस गिवन होता है, दिस इज़ टॉप मार्जिन। लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट मार्जिन, राइट साइड पर हम राइट मार्जिन छोड़ते हैं लिखते हुए, और नीचे बॉटम मार्जिन। ओके, सिमिलरली व्हेन वी वर्क ऑन कंप्यूटर वी हैव टू लेफ्ट मार्जिन ऑन आवर पेजेस। ओके, सो टुडे वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक, सेटिंग पेज मार्जिन्स। यू मस्ट हैव नोटिस्ड द वाइट स्पेस अराउंड द 4 साइड्स ऑफ अ बुक। जैसा कि मैंने आपको अभी नोटबुक में दिखाया, 4 साइड्स पर मार्जिन। So these are the 4 margins that we have। Margin is the amount of empty space between the edge of the page and the text। बेटा हम जो भी टेक्स्ट पेज पर लिखते हैं उसके साइड्स पर हम empty space छोड़ते हैं, that is called margin। A page has top, bottom, left and right margins। आपको मैंने अभी दिखाया है हमारे पेज पर
टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन होता है। इन MS Word, the default settings for all the 4 margins is 1 inch each। हमारे MS Word में 1 इंच का मार्जिन चारों तरफ से दिया गया होता है। हमारा टॉप मार्जिन भी 1 इंच होता है, बॉटम भी, लेफ्ट भी एंड राइट भी। हम इस मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स to set this margin। First is using predefined margins options, जो कि पहले से डिफाइन की हुई हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। Second is customize margins using page setup dialog box, and third is using rulers। Now we will do practically these 3 methods to set a page margin। Now setting tabs। Apart from the alignment buttons present on home tab, one can use the tab key to control the placement of text। बेटा जिस तरह से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट करने के लिए अलाइनमेंट बटन का यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम टैब की का यूज़ भी कर सकते हैं। प्रेसिंग द टैब की एडवांसेस द कर्सर पॉइंट टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। हम जितने स्टेप की सेटिंग करेंगे उतने स्टेप हमारा जो कर्सर है टैब की हेल्प से आगे की तरफ बढ़ेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप इज़ सेट एट एवरी हाफ इंच। बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब की सेटिंग होती है दैट इज़ हाफ इंच। दैट मीन्स व्हेन वी प्रेस टैब की आवर कर्सर मूव्स हाफ इंच और 1.27 सेंटीमीटर ahead। Tabs indent a single line of text at a time। टैब की हेल्प से बेटा हम एक सिंगल लाइन में अपने टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं। You can see the tab key how it works। See, when we press tab key, our cursor moves half inches ahead। That means जो हमारा कर्सर है वो हाफ इंच स्पेस छोड़कर आगे आगे मूव कर रहा है। Our next topic is indenting text। Indentation is the distance between the text and the page margins। बेटा जो हमारे पेज पर मार्जिन गिवन होता है तो हम उसके साथ ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम कुछ स्पेस देकर लिखना शुरू करते हैं तो दैट स्पेस इज़ कॉल्ड इंडेंटिंग। Indentation allows a user to move either paragraph or just the first line of a paragraph to a specific position। बेटा जब हम पेज पर लिखते हैं कई बार तो हम मार्जिन के साथ ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट सम टाइम वी हैव गिव सम स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड द टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड इंडेंटिंग टेक्स्ट। वी हैव 3 methods for the indenting text। First is using home tab, second is using layout tab, and third is using indent marker on ruler। Now you have to see indent marker on the ruler। देखिए जब हम वर्ड में वर्क करते हैं तो आपको इस तरह का रूलर दिखाई देता है टॉप पर। तो यहाँ पर बेटा ये छोटे छोटे सिंबल देखिए आप, छोटे छोटे से आइकन, छोटी छोटी सी पिक्चर्स देखिए इसके ऊपर। दिस वन इज़ इंडेंट मार्कर एंड दिस इज़ फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर हमें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को मूव करना है तो हम फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज़ करेंगे, और अगर हमें पूरे पैराग्राफ को मार्जिन से हटा करके थोड़ा आगे लेकर के जाना है देन वी यूज़ इंडेंट marker। Now indenting text। First of all we will use method number 1। Click on home tab। In the paragraph group there are 2 buttons given, decrease indent and increase indent। अब आप देखेंगे कि जो हमारा मार्जिन है इसके साथ जो स्पेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देन इंक्रीज हो गया, देखिए स्पेस,
Now we will select the paragraph. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज इंडेंट, स्पेस डिक्रीज हो गया, इंक्रीज इंडेंट, स्पेस इंक्रीज हो गया है. नाउ वी यूज मेथड 2 फॉर इंडेंटिंग टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल click on page layout tab. Here you can see in the paragraph group indent options are given left and right, increase और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर नीड. देखिए आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. स्पेस विल बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर नीड. नाउ वी विल यूज मेथड नंबर 3 फॉर इंडेंटिंग टेक्स्ट यूजिंग रूलर. बेटा आपको मैंने रूलर पर मार्किंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट दिखाया था. वी विल यूज दैट. फर्स्ट लाइन इंडेंट जो ऊपर वाला है दैट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट. देखिए हम इसको राइट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो राइट साइड की तरफ मूव कर गई है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेज ओरिएंटेशन. Page orientation refers to the direction in which the page of a document is displayed or printed. Word 2016 provides 2 page orientation options. बेटा पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमारा पेज किस डायरेक्शन में है और उसकी प्रिंटिंग जो है वो किस डायरेक्शन में होगी. तो हमारे पास 2 पेज ओरिएंटेशंस हैं. फर्स्ट इज़ पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन क्या है, आप अपनी बुक्स देखिए, आपकी बुक्स के जो पेजेस हैं ये पोर्ट्रेट हैं. इट मीन्स द डॉक्यूमेंट इज़ ओरिएंटेड वर्टिकली. आपकी बुक के पेजेस देखिए ऊपर से नीचे की तरफ है ना, तो दीज आर द पोर्ट्रेट पेजेस. दिस पेज ओरिएंटेशन हैज़ शॉर्टर टॉप एंड बॉटम एजेस. यहाँ पर जो टॉप और बॉटम एज होते हैं ये शॉर्ट होते हैं. इन वर्ड पोर्ट्रेट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारे पेजेस हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट होते हैं. दिस ओरिएंटेशन इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड सो ऑन. और इस तरह की ओरिएंटेशन जो है किस लिए यूज़ होती है, लेटर्स प्रिंट करने के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए और बुक्स प्रिंट करने के लिए. नेक्स्ट इज लैंडस्केप. इट मीन्स द डॉक्यूमेंट इज़ ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली. अब बेटा अपनी ड्राइंग की बुक देखिए, ठीक है, आपकी जो ड्राइंग की बुक है उसमें आपके जो पेजेस हैं वो लैंडस्केप हैं. दिस ओरिएंटेशन हैज़ शॉर्ट लेफ़्ट एंड राइट एजेस. इसमें क्या होता है, लेफ़्ट और राइट मार्जिन जो होता है वो कम होता है. अ लॉट ऑफ कलरिंग बुक्स आर फाउंड इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन. आपकी जो ड्राइंग बुक है, मैंने आपको अभी बताया कि आपकी कलरिंग बुक्स, ड्राइंग बुक्स जो हैं वो ज़्यादातर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में मिलती हैं. वी हैव 2 methods to set the page orientation. First is using layout tab and second is using page setup dialog box. For page orientation we will use method number 1. Click on page layout tab. In the page setup group, second option is orientation. Click on it. First is portrait. By default this is portrait. Now second is landscape. देखिए now your page has been landscape. Now method 2 to set the page orientation. First of all click on page layout tab. Then click on margins, custom margins. Page setup dialog box will appear. You have 2 types of orientation, portrait and landscape. Choose the landscape, click on OK. You can see the page is now landscaped. Our next topic is
page backgrounds. To make a page visually appealing, we can add watermarks, change the page color and apply borders. बेटा हम अपने पेज को सुंदर बनाने के लिए, ताकि दिखने में वो बहुत ही अच्छा लगे, हम उसमें वाटरमार्क्स ऐड कर सकते हैं, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं और उस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. These are done through the buttons present on the Design tab in the page background group. बेटा डिज़ाइन टैब पर पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको करेंगे. These are the 3 options given in page background group. First is watermark, second is page color, थर्ड इज पेज बॉर्डर्स. इनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली, हाउ वी कैन मेक आवर पेजेस ब्यूटीफुल. फर्स्ट इज अप्लाइंग वाटरमार्क इफेक्ट्स. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज वाटरमार्क. अ वाटरमार्क इज अ फेंट पिक्चर प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट. बेटा ये एक फेंट पिक्चर होती है, यानी कि ब्लर सी पिक्चर होती है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस की बैकग्राउंड पर आ जाती है. आपने देखा है कई बार बुक के पेज पर बैक पर एक लाइट सी पिक्चर होती है और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा होता है, तो जो बैक पर पिक्चर होती है फेंटेड पिक्चर, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क. For making our page beautiful, we use watermark. Okay, so first of all we will use method number 1, how we can apply watermark in a document. Click on page layout tab. There is an option watermark. You can choose any watermark given over here. यहाँ से आप कोई भी watermark choose कर लेते हैं. You can see watermark is present on your page. It will present on all the. You can apply a picture as a watermark in your document. You can apply a picture in your document as a watermark. Now we will use method number 2. First of all, click on page layout tab, then click on watermark, then click on custom watermark. A dialog box will appear. Choose picture watermark, then select the picture that you want to apply. See the location where your picture is present. कहाँ पर आपने पिक्चर सेव की है वहाँ पर चलेंगे. चूज़ योर पिक्चर, क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके. देखिए ये जो पिक्चर है एज ए वाटरमार्क आपके पेज पर आ गई है. नाउ दिस पिक्चर इज अप्लाइड ऑन ऑल द पेजेस. नाउ वी विल अप्लाई पेज कलर टू मेक अ डॉक्यूमेंट attractive. First of all, click on page layout tab, then click on page color option. Choose any color for your page. Click on that color. Now page color is applied in your document. Now we will apply page borders. Click on page layout tab. There is a third option in page background group, page borders. Click on it. Now choose any border from art section. Click on it. Choose any border. Then click on OK. You will get a border on your page. देखिए 4 साइड्स पर ये बॉर्डर आपके पेज पर दिखाई देगा. Your homework is try question A, question B and question C from the exercise of this
chapter. Okay, thank you. Stay home, stay safe.